السلام علیکم۔ دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں واجد اللہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں۔ ضلع اننت پور میں پیسنجر ٹرین مال بردار ٹرین سے ٹکرا گئی، 23 مسافرین ہلاک، 70 سے زائد زخمی، کئی افراد کی حالت تشویشناک۔ راحت کاموں کا آغاز، بوگیوں کو کاٹ کر پھنسے ہوئے مسافرین کو نکالنے کی کوششیں۔ حادثے پر چیف منسٹر کا اظہار افسوس، راحت اقدامات کی کلکٹر کو دی ہدایت۔ مرنے والوں کے افراد خاندان کو 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 1 لاکھ روپے معاوضہ کا وزارت ریلوے نے کیا اعلان۔ مختلف زمروں کی 312 جائیدادوں پر تقرر کے لیے 27 مئی کو گروپ 1 پریلم امتحان، انتظامات مکمل۔ ریاست میں گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس، آئندہ 2 دنوں میں گرمی میں کمی کا محکمہ موسمیات نے دیا اشارہ۔ یو پی اے حکومت کے آج 3 سال مکمل۔ اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آج سے آغاز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع اننت پور میں پیسنجر ٹرین ٹھہری ہوئی مال بردار ٹرین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 23 مسافرین ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ پیر کی صبح تقریباً 3 بجے اس وقت پیش آیا جب ہبلی بنگلور ہمپی ایکسپریس ٹرین نے پینوکونڈا ریلوے اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی مال بردار ٹرین کو ٹکر دے دی۔ اس واقعے میں 70 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ریلوے کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ سگنلنگ کی غلطی کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ اس قدر بھیانک تھا کہ ٹرین کی 4 بوگیاں پٹریوں پر سے اتر گئیں اور ان میں سے ایک میں آگ لگ گئی۔ مقامی پولیس، آتش فشاں اور ریلویز کے عہدیدار جائے واقعے پر پہنچ گئے اور بچاؤ کاموں کا آغاز کر دیا۔ ضلع اننت پور کے کلکٹر درگا داس اور دیگر سینئر عہدیدار راحت اور بچاؤ کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کلکٹر نے بتایا کہ زخمیوں کو فوری قریبی دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی افراد ابھی بھی ٹرین میں پھنسے ہوئے ہیں اور بوگیوں کو کاٹ کر انہیں باہر نکالنے کے کاموں کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے کے باعث آندھرا پردیش سے بنگلور کے لیے گزرنے والی کئی ٹرینیں تاخیر سے چلائی جا رہی ہیں اور کئی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے۔ چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی نے ضلع اننت پور میں پیش آئے ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چیف منسٹر نے حادثے کے مقام کا معائنہ کیا اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ کلکٹر کو فوری راحت اقدامات کے آغاز کی ہدایت دی۔ وزارت ریلویز نے ضلع اننت پور میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں مرنے والوں کے افراد خاندان کو فیکس 5 لاکھ روپے، شدید زخمیوں کو 1 لاکھ روپے اور دیگر کو معمولی زخمیوں کو 50,000 روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا ہے۔
रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर में पेश आए भयानक सड़क हादसे पर रंज गम का इजहार किया है। जगन मोहन रेड्डी, जो जिला गुंटूर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, ने हुकूमत से जख्मियों का इलाज करवाने पर जोर दिया और मरने वालों के अफराद खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। रियासती वज़रा रघुवीरा रेड्डी और शैलजानाथ के अलावा कांग्रेस के रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने अनंतपुर ट्रेन हादसे के मुकाम का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि 70 जख्मियों को पेनुकुंडा, हिंदूपुर और पट्टापर्ती के दवाखानों में शरीक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल जिला इंतजामिया राहत इक़दामात में मसरूफ़ है। इस मौके पर चिरंजीवी ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। ఢీకొనడం ద్వారా మొదటి భోగి మొత్తం ఫైర్ అయ్యి దాదాపు 8 మంది పైన అక్కడ కాలిపోయినారు। ఇప్పుడు లోపల వెళ్ళి చూసొస్తే ఆ మనుషులు గుర్తుపట్టడానికి కూడా వీల్లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది। మూడవ భోగిలో కూడా క్రష్ అయ్యి అక్కడ కూడా 4 చనిపోయినారు। ఇప్పటికే 70 మందిని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। హిందూపురం హాస్పిటల్లో, పెనుగొండ హాస్పిటల్లో, అదేవిధంగా పుట్టపర్తి సత్యసాయి హాస్పిటల్లో కూడా అందరినీ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇప్పటికీ బయటికి తీసినటువంటి వాళ్ళు 8 మంది చనిపోయినారు। మరో 8 మంది కాలిపోయి ఉన్నటువంటివి ఇంకా ఇప్పుడే మేము చూసి రావడం జరిగింది। ఇది చాలా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన। మేము విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాం। రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రైల్వే నుంచి సంపూర్ణమైనటువంటి సహకారం, ఇప్పటికే రైల్వే మినిస్టర్ నాకు అష్యూరెన్స్ అత్యధిక శాతం ఆయన తీసుకొస్తే తక్షణ చర్యలు ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలకు సంబంధించినటువంటి నేనున్నటువంటి సభలో కూడా రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ దాన్ని తీసుకొచ్చి చర్యలు అన్ని కూడా ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మరింత జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా భవిష్యత్తు జరగకుండా కూడా హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ వల్ల మానవ తప్పిదాలు। खम्मम के तेलुगुदेशम रुकन लोकसभा नामा नागेश्वर राव ने अनंतपुर में पेश आए ट्रेन हादसे के वाक़े को पार्लियामेंट में उठाते हुए इस हादसे में मरने वालों के अरकान ख़ानदान को फीकस 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया की फराहमी का मुतालबा किया। लोकसभा की कार्रवाई के 12 बजे दिन तक इल्तिवा के बाद अज़ां सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस हादसे के मरने वालों के अफराद ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना को सीबीआई ने कल 11 बजे दिन हाजिर होने की हिदायत दी है। उन्हें वैमपैक मामले में पूछताछ के लिए तहकीकाती एजेंसी की जानिब से तलब किया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वाईएसआर के पहले दौरे वजारत आला के दौरान इस कंपनी को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की हैं। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज जिला गुंटूर के माचरला में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वो मुख्तलिफ मकामात पर रोड शोज में भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से खिताब करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट के इस्तेमाल की अपील की है। जगन के रोड शोज में अवाम का काफ़ी हुजूम देखा जा रहा है। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये इम्तिहान 27 मई को मुनक़िद होगा, जिसमें 3,03,712 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एक ओहदेदार ने बताया है कि इस इम्तिहान के लिए रियासत भर में 740 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं।
उम्मीदवार मुख्तलिफ ज़ुमरों की 312 जायदादों पर तकर्रुर के लिए ये इम्तिहान तहरीर करेंगे। ये इम्तिहान इतवार 27 मई को 10:30 बजे दिन ता 1 बजे दोपहर मुनक़िद किया जाएगा। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो इम्तिहान के आगाज़ से आधा घंटा क़ब्ल इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाएँ। जिला वरंगल के महबूबाबाद में रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के दौरे में रुकावट के 2 साल की तकमील के मौके पर वरंगल जेएसी ने 26 ता 28 में पदयात्रा के एहतमाम का ऐलान किया है। जिला जेएसी कन्वीनर पापी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस मौके पर 100 किलोमीटर तक पदयात्रा की जाएगी। यात्रा के आखिरी दिन हनमकुंडा में इख्तितामी जलसा मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें सदरनशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम और दूसरे शिरकत करेंगे। लंदन में तेलंगाना जेएसी कायद श्रीधर को तहनीत पेश की गई। यूरोप टीआरएस सेल की जानिब से ये तकरीब मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए शुरका ने कहा कि न सिर्फ तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की जाएगी, बल्कि इलाके की असर-ए-नौ तामीर की भी कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रियासत आंध्र प्रदेश में गर्मी की लहर में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शिद्दत देखी जा रही है। रायलसीमा, आंध्रा और तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। वहीं आज रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 2 दिन कबल जिला गुंटूर के रिंता चिंतला में दर्जे हरारत सबसे ज़्यादा 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की लहर में कमी का इशारा दिया है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं की पेश क़यासी की है, जबकि हैदराबाद में भी दर्जे हरारत में गिरावट होगी। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि मंगल की सुबह स्टील प्लांट्स के 2 यूनिट्स में आग लग गई। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म न हो सका। आतिशफरो अमला आग बुझाने के काम में मसरूफ है। मलकाजगिरी में आग लगने का एक और वाक़या पेश आया है। शॉर्ट सर्किट के बायस लक्ष्मी नरसिम्हा टिम्बर डिपो में आग के शोले भड़क उठे। इस वाक़े में कई लाख रुपए का माल जलकर खाकिस्तर हो गया। 2 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपीए हुकूमत ने अपनी दूसरी मियाद के 3 साल आज मुकम्मल कर लिए हैं। आलमी माशी बहरान के पस मंज़र में बदउनवानी और बढ़ती हुई कीमतों के मसले के हल के साथ इसकी नज़र आम आदमी को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की सिमत मरकूज़ है। इत्तेहाद की मजबूरियों ने कई महाज़ों पर हुकूमत को अपने कदम पीछे हटा लेने पर मजबूर कर दिया है। कई सियासी माहिरीन और अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया है। अब जबकि हुकूमत के 2 साल बाकी हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि वो तमाम महाजों पर कई इक़दामात करेगी और मुद्दत कार के इख्तिताम से पहले लोकपाल इदारे का क़याम अमल में लाएगी। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 800वां उर्स अजमेर में आज से शुरू होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने उर्स में ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात किए हैं। अजमेर शरीफ के लिए मुसाफिरीन के हजूम को देखते हुए महकमे रेलवेज़ ने मुख्तलिफ मकामात से खुसूसी ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया है ताकि ज़ायरीन को सहूलत पहुँचाई जा सके। ईरान को माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के इरादे से अमरीकी सेनेट ने ईरान हुकूमत पर नई तहदीदात को मंजूरी दे दी है ताकि उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सलाहियत हासिल करने से रोका जा सके। निदाई वोट से सेनेट ने इन तहदीदात को मंजूर कर लिया है।
صدر امریکہ باراک اوباما اور افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے افغانستان میں امن کے مشن کا اعادہ کیا ہے۔ افغانستان سے متعلق ناٹو ارکان ممالک میں اختلافات کے خدشات کو دور کرنے کا بھی عہد کیا گیا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام امن اور تحفظ چاہتے ہیں۔ اوباما نے کہا کہ امریکہ اور ناٹو افغان سیکورٹی فورسز کو حمایت فراہم کرتی رہے گی۔ امریکہ میں ناٹو کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں کئی ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ Over the past 2 years, we've made important progress. Our forces broke the Taliban's momentum. More Afghans are reclaiming their communities. Afghan security forces have grown stronger, and the transition that we agreed to in Lisbon is well underway. ایک 7 سالہ لڑکے نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھ کر نیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے یہ انوکھا کارنامہ انجام دیتے ہوئے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اس طرح بالاجی نامی یہ لڑکا ایورسٹ پر پہنچنے والا سب سے کم عمر لڑکا بن گیا ہے۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ ضلع اننت پور میں پیسنجر ٹرین مال بردار ٹرین سے ٹکرا گئی، 23 مسافرین ہلاک، 70 سے زائد زخمی، کئی افراد کی حالت تشویشناک۔ راحت کاموں کا آغاز، بوگیوں کو کاٹ کر پھنسے ہوئے مسافرین کو نکالنے کی کوششیں۔ حادثے پر چیف منسٹر کا اظہار افسوس، راحت اقدامات کی کلکٹر کو دی ہدایت۔ مرنے والوں کے افراد خاندان کو 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 1 لاکھ روپے معاوضہ کا وزارت ریلوے نے کیا اعلان۔ مختلف زمروں کی 312 جائیدادوں پر تقرر کے لیے 27 مئی کو گروپ 1 پریلم امتحان، انتظامات مکمل۔ ریاست میں گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس۔ آئندہ 2 دنوں میں گرمی میں کمی کا محکمہ موسمیات نے دیا اشارہ۔ یو پی اے حکومت کے آج 3 سال مکمل۔ اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آج سے آغاز۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔